Good morning all of you. In this video, we will see the construction and working of simple machine which is called as Weston's differential pulley block. Also, in this lecture, we will discuss about velocity ratio, mechanical advantage and efficiency for Weston's differential pulley block. First of all, what is Weston's differential pulley block? Weston's differential pulley block consists of two blocks A and B. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ब्लॉक A upper block and block B lower block. So it consists of two blocks A and B. The upper block A has two pulleys P1 and P2. Also, these two pulleys of upper block A are fixed coaxially to a common spindle. That means ऊपरी ब्लॉक A में विभिन्न व्यास के दो पुली हैं P1 and P2. These two pulleys, that is ऊपरी ब्लॉक A के ये दो पुलीज एक सामान्य स्पिंडल के साथ कोएक्सियल है. Now, also these pulleys turn together as one pulley. That means both of them behave as one pulley with two groups. That is ये पुली एक साथ एक चरखी के रूप में बदल जाती है. That is दोनों दो ग्रुप्स के साथ एक चरखी के रूप में व्यवहार करती है. Now, the lower block B also carries a pulley to which the load W is attached. That is निचला ब्लॉक भी एक पुली कैरी करता है जिसमें लोड W जुड़ा हुआ है. Also, lower block called snatch block that carries a movable pulley to which the load W is attached. That means लोअर ब्लॉक जिसे हम लोग स्नैच ब्लॉक कहा जाता है, जो एक मूवेबल पुली कैरीज करता है जिसमें लोड W जुड़ा हुआ है. नाउ, एंड इंडलेस चेन, दैट मीन्स ए कंटिन्यूअस चेन passes round the larger pulley P1, then round the lower block pulley B, and finally round the a smaller block pulley of the block A, that is P2. That means एक कंटिन्यूअस चेन बड़े पुली P1 के पास से गुजरती है, फिर निचले ब्लॉक पुली B को गोल करती है. मीन्स इसके चारों तरफ ये राउंड होती है, राउंड द लोअर ब्लॉक पुली, और अंत में ब्लॉक A के छोटे पुली दैट मीन्स P2 को राउंड करती है. सो द रिमेनिंग चेन hangs slack and is joined to the first portion of the chain as shown in figure. शेष चेन लटके हुए हैं और चेन के पहले भाग से जुड़ जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. So the effort P is applied to the chain which passes over the larger pulley P1 of block A. That is effort P को चैन के उस हिस्से पर लागू किया जाता है जो ब्लॉक A के बड़े पुली के ऊपर से गुजरता है. Now, to prevent the chain from slipping, projection are provided in the groups of both the upper pulleys. That means चेन को फिसलने से रोकने के लिए दोनों ऊपरी पुली के ग्रुप्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है. That means, in other words, we can say that the slipping of the chain is prevented by providing teeth on the pulleys. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पुली पर टीथ प्रदान करने से चेन के फिसलने को रोका जाता है. That is, by providing teeth on the pulleys, slipping of the chain is prevented. Now, in one revolution of the pulley,
a length pi d, where d is the diameter of larger pulley of chain passes over pulley P1 towards right, that is unwinding of chain from pulley P1. पुली की एक रिवॉल्यूशन में चेन की लंबाई पाई डी दाईं ओर चरखी P1 से गुजरती है, दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ चेन फ्रॉम पुली P1, दैट इज पुली P1 से चेन को अनवाइंडिंग किया जाता है, दैट इज फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, पुली P1 से चेन जो होता है मेरा वो अनवाइंडिंग होता है जब हम एफर्ट P अप्लाइड करते हैं तो। नाउ दिस पुल रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट, यह खिंचाव एफर्ट के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। Also, this is equal to the length of the chain pulled over the larger pulley, और यह बड़े चरखी पर खींची गई चेन की लंबाई के बराबर है, दैट मीन्स ये पाई डी के बराबर है। जितना रस्सी जो है अनवाइंडिंग होता है, जितना चेन अनवाइंडिंग होता है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द चेन के बराबर है, मीन्स इक्वल टू दी लेंथ ऑफ द चेन पुल्ड ओवर दी लार्जर पुली के बराबर है। नाउ सिंस द स्मॉलर पुली also turns with the larger pulley, so by smaller pulley P2 the chain released, चूंकि छोटी पुली भी बड़ी चरखी के साथ टर्न होती है, सो छोटी चरखी P2 द्वारा चेन रिलीज किया जाता है, and the length of the chain released by the smaller pulley equal to pi into small d, जहाँ पे small d जो है वो स्मॉलर पुली का डायमीटर है। सो साइमल्टेनियसली अ लेंथ पाई डी passes over towards the left, that means winding of chain on pulley P2, इसके साथ ही साथ एक लंबाई पाई डी बाईं ओर से गुजरती है, that is winding of chain on pulley P2. So the lengthening of chain on the front side and its shortening on the load side results in the lifting of weight, that means एफर्ट साइड पर चेन की लंबाई में बढ़ोतरी, मीन्स एफर्ट साइड में चेन जो मेरा है उसमें उसको हम लोग पुल्ड कर रहे हैं इसको, तो चेन इंक्रीज कर रहा है, और लोड साइड पर चेन की लंबाई में कमी जो है हमको लोड को लिफ्ट करने में मदद करता है। सो इफ वी कंसीडर लेट D is equal to diameter of pulley P, or we can say that diameter of larger pulley. Similarly, small d is equal to diameter of pulley P2 or diameter of the smaller pulley. Now W is equal to load to be lifted or weight lifted, and let P is equal to effort required or effort applied to lift the load. So we can say that in one revolution of the pulley, the length pi d of chain passes over P1 towards right, that is unwinding of chain from pulley P. Since a smaller pulley also turns with the larger pulley, the length of the chain released by the smaller pulley is equal to pi into d, where small d is equal to diameter of the smaller pulley. So नेट शॉर्टेनिंग ऑफ द चेन मीन्स जो मेरा नेट जो चेन में की लंबाई में जो शॉर्टेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, पाई डी माइनस पाई डी, दैट मीन्स पाई इंटू लार्जर डायमीटर, या कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ लार्जर पुली माइनस डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली। देयरफॉर डिस्टेंस थ्रू विच द लोड विल मूव अप or load is lifted equal to pi d minus d divided 2. Since जब हम चेन को छोटा करते हैं तो चेन को दो भागों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, दैट मीन्स कहने का ये मतलब है
कि यहाँ पे जब हम चेन को छोटा करते हैं तो चेन के दो भागों के बीच समान रूप से विभाजित करता है जो लोड को सपोर्ट किए हुए है। दैट इज जो लोड को सपोर्ट किए हुए है, शॉर्टेनिंग ऑफ द चेन को दो भागों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। दैट मीन्स द शॉर्टेनिंग ऑफ द चेन will be equally divided between the two portions of the chain supporting the load, that is pulleys in the lower block B. So that's why we can say that distance through which the load will move up or the load is lifted क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे पाई d minus d divided 2. Now velocity ratio क्या होता है? We know that V are equal to distance moved by effort is equal to distance moved by load. Distance moved by effort में कितना है? pi into capital D. where capital D is equal to diameter of the larger pulley. And distance moved by load कितना है? half pi D minus D. That's why VR is equal to कितना हो जाएगा मेरा? 2D divided D minus D. Similarly, we can also calculate efficiency. Efficiency is equal to क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो, और एम इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बटा टी, एंड वी आर मैंने यहां से फाइंड कर लिया 2d डिवाइडेड d माइनस डी. सो वी कैन गेट इफिशियंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा पी डी माइनस डी डिवाइडेड 2d. नाउ लेट अस डिस्कस इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एट द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, the force acting on the system are shown in figure. Let us assume that segments of the chain supporting the load to be vertical. मान लिया कि जो मेरा लोड सपोर्ट कर रहा है, ये जो चेन है, वो उसको मैंने वर्टिकल कंसीडर कर लिया. So we can say that for equilibrium condition, या कह सकते हैं कि from equilibrium condition sigma v equal to 0 means summation of all vertical forces is equal to 0, and also sigma m equal to 0, या कह सकते हैं कि sigma m about o equal to 0, जहाँ पे मेरा o जो है यहाँ पे ये दोनों पुली जो है उसका सेंटर है, मीन्स दोनों पुली जो है वो कोएक्सियल है, तो सेंटर क्या होगा? सेम होगा. सो एंड द टेंशन इन ईच ऑफ द सेगमेंट्स इक्वल टू W by 2, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो लोड एक्ट हो रहा था वो W एक्ट हो रहा था इस पुली के थ्रू, और ये इस पुली पे दो चेन, दैट मीन्स सेम चेन है यहाँ पे. सो अगर मान लिया कि टेंशन T इसमें क्रिएट होता है तो टेंशन T भी इसमें भी क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों जो चेन है वो मेरा सेम है. सो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि 2T इक्वल टू क्या हो जाएगा? W. दैट मीन्स T इक्वल टू हम लोग W by 2 यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो टेंशन इन ईच ऑफ द सेगमेंट्स विल बी W बटा 2. Also further for moment equilibrium sigma MO equal to 0. So taking moments of all forces about the axis of upper block, that is about point O, we know that moment is equal to क्या होता है? force into perpendicular distance. So अगर हम sigma moment about O equal to 0 को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो we get P into D बटा 2, क्योंकि मेरा पॉइंट O से जो P एफर्ट लग रहा है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से D बटा 2 है. वी नो दैट मोमेंट इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग. दैट मीन्स यहाँ जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है उस पॉइंट से इस फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दैट मीन्स कह सकते हैं कि P इंटू D बटा 2, और इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? वो क्लॉकवाइज होगा. अगर हम क्लॉकवाइज को यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर कर ले और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव कंसिडर कर ले तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस P इंटू D बटा 2. सिमिलरली यहाँ पे टेंशन
जो मेरा टेंशन फोर्स T W/2 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये स्मॉलर पुली पे एक्ट हो रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, D/2। सो यहाँ से अगर हम इसका इस फोर्स के लिए मीन W/2 फोर्स के लिए पॉइंट O से मोमेंट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, W/2 इंटू D/2। लेकिन ये क्या है, भी क्लॉकवाइज है, सो क्या हो जाएगा W/2 इंटू D/2। नाउ मेरा दूसरा जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो लार्जर पुली P1 पे एक्ट हो रहा है। सो दैट्स वाई ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है W/2 डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, और जो डिस्टेंस है पॉइंट O से लार्जर पुली पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, D/2। दैट्स वाई वी कैन से दैट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। सो माइनस W/2 इंटू D/2 इक्वल टू 0। सो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं, तो PD/2 माइनस WD/4 प्लस W/4 इक्वल टू 0। और यहां से हम निकाल सकते हैं PD/2 इक्वल टू W/4 D-D। सो यहां से P का वैल्यू जो आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, W/2 D-D/D। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे एफर्ट P को फाइंड आउट कर लिया। सो इन दिस केस वी फाइंड आउट मैकेनिकल एडवांटेज। यहां से अगर मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, W/P, एंड P का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है, कितना है, W/2 डिवाइडेड D-D डिवाइडेड D। सो W कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2D डिवाइडेड D माइनस स्मॉल d। सो मेरे पास मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से फाइंड आउट मैंने कर लिया। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि मेरा मैकेनिकल एडवांटेज जो आया है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर आया है, जो कि मैंने पहले फाइंड आउट किया है, 2D डिवाइडेड D माइनस D। सो यहां से हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो व्हेन नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एट द कॉन्टैक्ट सरफेसेज। सो द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो यहां से फाइंड आउट हुआ। This has to be so because friction has been neglected. So obviously the efficiency of the system will be 100%. चूंकि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो मेरा होगा वो 100% होगा। But practically it is not possible. So some frictions are present at the contact surfaces. Now, the Westerns differential pulley ब्लॉक इज यूज्ड टू लिफ्ट दी हेवी लोड्स। इसका यूज जो होता है वो हेवी लोड्स को उठाने में होता है, टू लिफ्ट दी हेवी लोड्स, एंड प्रोवाइड्स अ गुड गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज बाय यूजिंग फार लेस नंबर ऑफ पुलीज देन दैट ऑफ एम्प्लॉयड इन सिस्टम ऑफ पुलीज। मैं आपको डिफरेंट जब पुली को स्टडी करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि उसकी कंपैरिजन में यहाँ जो मैंने पुली यूज किया है वो बहुत ही लेस नंबर ऑफ पुली यूज किया है। सो इस तरह से ये वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली ब्लॉक है जो वेरी हेवी लोड को लिफ्ट में करने में बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।